Hello everyone, myself CA Rohit Fulwani. We hope you and your family are safe and doing well. We have got a good response from previous webinars on Ind AS. Hope we have clarified all the doubts and queries and we are happy to help you and guide you again. So we are back with Ind AS. In this webinar, we'll be discussing about Ind AS 111 joint arrangements. I shall request you to post your queries in the comment section below so that we can reply to your queries at the end of this webinar. Do subscribe to our channel for receiving regular updates. So now we'll see what is the purpose of Ind AS 111. Ind AS 111 describes the accounting for joint arrangement. Joint arrangements are economic arrangement between two or more parties sharing joint control and making the decision jointly about the business activities. An entity may enter into a joint arrangement with another party for many reasons. For example, the investors may have complementary skills. It might be necessary to share the risk of a project. The project might benefit from economies of scale if two or more investors are involved, or the size of the project might be beyond single entity's capabilities. The purpose of the joint arrangement might be to share cost or might be motivated by profit. The investor will be required to apply the equity method of accounting or to recognize on line by line basis its share of underlying assets, liabilities, revenues and expenses. The accounting treatment required will depend on the substance of the arrangement and the nature of the investor's interest in it. The option to apply proportionate consolidation has been removed. So now friends, we'll move towards PPT and see what Ind AS 111 speaks about. Ind AS 111 joint arrangements. दोस्तों पहले ये देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड किसको अप्लाई करना चाहिए. This standard shall be applied by all entities that are parties to a joint arrangement. ठीक है, तो पहले देखते हैं कि joint arrangement होता क्या है. जो भी पार्टीज जॉइंट अरेंजमेंट में है वो पार्टीज को, वो इन्वेस्टर्स को ये स्टैंडर्ड अप्लाई करना पड़ेगा. तो पहले दोस्तों ये देखते हैं कि जॉइंट अरेंजमेंट होता क्या है. A joint arrangement is an arrangement where two or more parties have joint control. तो पहले देखते हैं कि जॉइंट अरेंजमेंट में अरेंजमेंट का क्या मीनिंग होता है. अरेंजमेंट तो देखिए ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. ठीक है, तो ओरल देखो इंड एस तो अभी फिलहाल लिस्टेड कंपनीज और हाई नेटवर्थ कंपनीज को एप्लीकेबल है. ठीक है, तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट या ओरल अरेंजमेंट होना मुश्किल है, लेकिन थियोरेटिकली हाँ ओरल भी इंक्लूडेड है. तो रिटन, ओरल और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तीनों यहाँ पे इंक्लूडेड है. तो a joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control. अभी एग्जांपल देता हूं मैं आपको. A और B have entered into a business arrangement. ठीक है, वो बिजनेस अरेंजमेंट में दोनों ने 50% कंट्रीब्यूट किया है अपने शेयर कैपिटल का. ठीक है, दोनों ने 50-50 कंट्रीब्यूट किया है. अब वो अरेंजमेंट ये स्पेसिफाई करता है दैट डिसीजन कैन बी टेकन ओनली इफ 75% ऑफ वोट्स आर इन फेवर. डिसीजन वो अरेंजमेंट का तभी लिया जाएगा जब 75% ऑफ वोट्स आर इन फेवर. ठीक है, अब दोनों का 50-50% है शेयर कैपिटल का. तो अब ए अभी कोई डिसीजन लेना है अरेंजमेंट का तो सिर्फ ए डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास तो 50% है और अरेंजमेंट बोलता है 75% का रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे तो यूनानिमसली दोनों को आना पड़ेगा ए और बी को डिसीजन लेने के लिए, तब जाके वो 75% का कंडीशन फुलफिल होगा. हाँ 50 और 50 100 होगा, लेकिन अरेंजमेंट का रिक्वायरमेंट है 75%. तो 75 कब कंप्लीट होगा उसका रिक्वायरमेंट 75 का, जब दोनों यूनानिमसली डिसाइड करेंगे. तो ये इम्प्लाइड अरेंजमेंट है कि ए और बी दोनों डिसाइड करेंगे तभी आगे उनका डिसीजन अप्रूव होगा.
ठीक है, तो ये एक अरेंजमेंट हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया इम्प्लाइड अरेंजमेंट का। तो अब मैंने क्या बोला था, अरेंजमेंट के की पॉइंट्स क्या है? देयर मस्ट बी एन अरेंजमेंट, ओरल, रिटन, इम्प्लाइड, तीनों में से कुछ भी चलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, टू और मोर पार्टीज, मिनिमम टू पार्टीज तो होना चाहिए, तब जाके वो जॉइंट अरेंजमेंट में आएगा। एक पार्टी अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है या एक पार्टी का खाली कंट्रोल है उसमें, तो वो पार्टी का अगर कंट्रोल एक का आ गया तो वो फिर यहाँ पे कवर नहीं होगा। देयर मस्ट बी टू और मोर पार्टीज। एक पार्टी का सोल कंट्रोल है उस अरेंजमेंट पे, तो फिर आपको इंड एस 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो रेफर करना पड़ेगा, इंड एस 111 से एक्सक्लूड हो जाएंगे आप, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन क्या है, जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट कंट्रोल हम आगे देखेंगे कि जॉइंट कंट्रोल की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, देयर मस्ट बी एन अरेंजमेंट। दूसरा, टू और मोर पार्टीज होना चाहिए, मिनिमम टू पार्टीज होना चाहिए। तीसरा, जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। जॉइंट कंट्रोल की डेफिनेशन हम देखेंगे, और कंट्रोल तो डिफाइन किया है इंड एस 110 में, तो 110 तो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन कंट्रोल की डेफिनेशन 110 में क्या दी गई है उसके हम रिकैप कर लेते हैं। पावर ओवर द इन्वेस्टी, इन्वेस्टी पे पावर होना चाहिए। पावर का मीनिंग क्या होता है, डिसीजंस लेना ओवर द रिलेवेंट एक्टिविटीज, ठीक है। जो भी रिलेवेंट एक्टिविटीज है वो डिसीजंस लेना या इन्फ्लुएंस करना वो डिसीजंस पे, वो होता है पावर ओवर द इन्वेस्टी। दूसरा क्या है, राइट या एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न्स। तीसरा क्या है, एबिलिटी टू एक्सरसाइज पावर टू इन्फ्लुएंस दोस रिटर्न्स। तो ये तीन कंडीशन जब फुलफिल होती है तब कंट्रोल की डेफिनेशन फुलफिल होती है इंड एस 110 में। तो ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इंड एस 111 आपके पास कंट्रोल नहीं, जॉइंट कंट्रोल आना चाहिए। दो और पार्टी, टू और मोर पार्टीज शुड हैव जॉइंट कंट्रोल, और अरेंजमेंट होना चाहिए एक, या तो रिटन, ओरल या इम्प्लाइड, ठीक है। अब जॉइंट कंट्रोल की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज जॉइंट कंट्रोल? जॉइंट कंट्रोल इज कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ एन अरेंजमेंट which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the party sharing control. मैंने क्या बोला था, अगर सिंगल पार्टी कंट्रोल करता है तो आपको 110 अप्लाई करना है इंड एस, आपको 111 अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो सोल पार्टी कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे जॉइंट कंट्रोल है, तो समझो दो पार्टीज है, दो पार्टीज कंट्रोल कर रही है अरेंजमेंट पे। अब वो डिसीजंस लेना है अरेंजमेंट का, तो वो डिसीजंस लेने के लिए दोनों को यूनानिमस डिसीजन लेना पड़ेगा, दोनों को हाँ बोलना पड़ेगा, तब जाके वो डिसीजन ले पाएंगे, तब जाके वो यूनानिमस कंसेंट होगा। यूनानिमस कंसेंट चाहिए जॉइंट कंट्रोल के लिए। पहले तो कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ एन अरेंजमेंट होना चाहिए, रिलेवेंट एक्टिविटीज का डिसीजन है उसमें यूनानिमस कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। जॉइंट अरेंजमेंट की क्या डेफिनेशन थी, जॉइंट अरेंजमेंट की क्या डेफिनेशन थी? जॉइंट अरेंजमेंट एक अरेंजमेंट है बिटवीन टू और मोर पार्टीज विद जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट कंट्रोल की क्या डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्चुअली शेयरिंग ऑफ कंट्रोल प्लस डिसीजंस अबाउट द रिलेवेंट एक्टिविटीज है उसमें यूनानिमस कंसेंट होना चाहिए, तब जाके जॉइंट अरेंजमेंट की फुल डेफिनेशन अलोंग विद जॉइंट कंट्रोल फुलफिल होगी, तब जाके आपको इंड एस 111 अप्लाई करना पड़ेगा। अब जॉइंट कंट्रोल का ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि कब इंड एस 111 के स्कोप में आएगा, कब 111 के स्कोप में नहीं आएगा। पहले तो आप ये देखिए, does the contractual arrangement gives all the parties or group of parties control? मैंने क्या बोला, क्या वो अरेंजमेंट जो बनाया गया है वो दोनों पार्टी या दो से ज्यादा पार्टी को कंट्रोल देती है? हाँ, अगर कंट्रोल देती है तो अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अब सेकंड कंडीशन देखिए कि जो डिसीजन लेने वाले हैं जॉइंट अरेंजमेंट का,
वो डिसीजन में यूनानिमस कंसेंट की जरूरत है, और यूनानिमस कंसेंट की जरूरत है, तो वो दोनों पार्टीज कंसेंट ले रही है, तो वो अरेंजमेंट जॉइंटली कंट्रोल्ड माना जाएगा और वो अरेंजमेंट जॉइंट अरेंजमेंट हो जाएगा। अब जॉइंट अरेंजमेंट हो जाएगा तो आपको इंड AS 111 अप्लाई करना है, और जॉइंट अरेंजमेंट नहीं है तो आप 111 में से निकल जाते। अब जॉइंट अरेंजमेंट की भी दो अलग टाइप्स है, एक तो जॉइंट ऑपरेशन है और एक जॉइंट वेंचर है। पहले तो हम जॉइंट अरेंजमेंट देख लेंगे क्या है। पहले तो जॉइंट अरेंजमेंट बता दिया मैंने क्या है। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, 2 और मोर पार्टीज होना चाहिए। जो अरेंजमेंट है उसमें 2 और मोर पार्टीज इन्वॉल्व होना चाहिए, जॉइंटली कंट्रोल्ड होना चाहिए। अरेंजमेंट, 2 और मोर पार्टीज और जॉइंटली कंट्रोल्ड, ये 3 चीज हो गई। तो आपको ये स्टैंडर्ड अप्लाई करना है इंड AS 111। तो आप अरेंजमेंट पे उसको बोल सकते हैं कि हाँ वो जॉइंट अरेंजमेंट है, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अब आगे हम एक एग्जांपल देख लेंगे जॉइंट कंट्रोल का। अब सन, स्काई और मून, ये तीनों ने मिलकर एक अरेंजमेंट बनाया, ठीक है। सन का शेयर उसमें 50% है, स्काई का शेयर उसमें 30% है, मून का शेयर उसमें 20% है, ठीक है। वो अरेंजमेंट में सन का 50% है, स्काई का 30% है और मून का 20% है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन स्काई, सन एंड मून स्टेट्स दैट at least 75% is required to make decision about arrangements relevant activities। अब ये जो अरेंजमेंट की जो relevant activities है उसमें 75% ऑफ पॉजिटिव वोट्स चाहिए उनके, तब जाके वो डिसीजन होगा अप्रूव, ठीक है। तो अगर अरेंजमेंट का कोई डिसीजन लेना है तो अगर सन बोलेगा हाँ चलो ये डिसीजन XYZ ले लेते, तो क्या वो डिसीजन ले पाएगा? उसके पास तो 50% होल्डिंग है, 50% राइट्स है उसके पास, तो वो तो नहीं ले पाएगा। क्या सन और मून ले पाएंगे? 50 + 20 70% है उनके पास, तो क्या बोला है 75% चाहिए डिसीजन के लिए, तो सन और मून भी नहीं ले पाएंगे। अब सन और स्काई अगर मिल गए कोई डिसीजन लेने के लिए 50 + 30 तो 80 हो गया, तो 75% की तो क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। तो हाँ, तो ये अरेंजमेंट को हम बोल सकते हैं कि ये जॉइंट अरेंजमेंट है। तो अब ये देख लेते क्या लिखा है यहाँ पे, द कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट देयरफॉर implies that sun and sky have joint control as decisions about the arrangement's relevant activities cannot be made without sun and sky agreeing। जब तक सन और स्काई एग्री नहीं करते तब तक अरेंजमेंट जो बनाया गया है उसके डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। सन और मून भी अगर मिल जाते ना तब भी डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सन और मून मिल गए तो हो गए कितने 70%, सन और स्काई मिल गए तो हो गए 80%, तब जाके कंडीशन फुलफिल होगी। स्काई और मून भी मिल गए ना तभी भी नहीं हो पाएगा, तभी भी आपका 30 + 20 50% हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट 75% के, तो सन और स्काई जब भी मिलेंगे तब जाके डिसीजंस ले पाएंगे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लाइड जॉइंट कंट्रोल, ठीक है। तो ये केस में आपको इंड AS 111 अप्लाई करना पड़ेगा। अब इंटरैक्शन बिटवीन इंड AS 110, इंड AS 111, इंड AS 28 और इंड AS 109 का देख लेते हैं। पहले तो आपको देखना है क्या एक सिंगल इन्वेस्टर कंट्रोल करता है इन्वेस्टमेंट में। तो हाँ, एक सिंगल इन्वेस्टर है जो कंट्रोल कर रहा है, तो आपको इंड AS 110 में जाना है, ठीक है। आपको वहां पे जाके कंसोलिडेट करना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो अब दूसरा देखते हैं कि अगर आपका आंसर नो है, कंट्रोल नहीं है इन्वेस्टर का, तो ये देखना है कि यूनानिमस कंसेंट चाहिए बिटवीन 2 इन्वेस्टर्स कलेक्टिवली कंट्रोलिंग। तो वो देखना है कि एक इन्वेस्टर कंट्रोल नहीं कर रहा है तो क्या 2 इन्वेस्टर कंट्रोल कर रहे हैं, क्या जॉइंट कंट्रोल है। जॉइंट कंट्रोल है, अगर जॉइंट अरेंजमेंट है तो आप इंड AS 111 अप्लाई करो। कंट्रोल भी नहीं है, जॉइंट कंट्रोल भी नहीं है, दोनों का आंसर नो है, तो आप ये देख लीजिए कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है क्या। अगर हाँ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो आप इंड AS 28 अप्लाई करिए, ठीक है। आप इंड AS 28 में जाइए, उसमें देखिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है।
आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं है, तो आप वो इन्वेस्टमेंट को इंड AS 109 के हिसाब से अकाउंट कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल इंटरेक्शन है। आप एक बार ये स्लाइड को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट, मैंने बोला था पहले तो हमें यह देखना है कि जो दो पार्टीज आई है, जो दो पार्टीज ने एक अरेंजमेंट किया है, वो तो अपने देख लिया कि ये जॉइंट अरेंजमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल शेयरिंग है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, जॉइंट कंट्रोल है, 2 और मोर पार्टीज है, तो अब ये जॉइंट अरेंजमेंट हो गया। अब जॉइंट अरेंजमेंट तो हो गया, अब वो अरेंजमेंट को क्या नाम दोगे? क्या वो जॉइंट ऑपरेशन है, क्या वो जॉइंट वेंचर है? आपको ये देखना है कि जॉइंट ऑपरेशन है या जॉइंट वेंचर है। तो वो कैसे क्लासिफाई करेंगे वो पहले देख लेते हैं। उसके पहले क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं उसके पहले हम देख लेते हैं कि जॉइंट ऑपरेशन की मीनिंग क्या होती है और जॉइंट वेंचर की मीनिंग क्या होती है। पहले तो वो देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसको क्लासिफिकेशन कैसे करना है। जॉइंट ऑपरेशन है के हिसाब से क्लासिफाई करना है कि जॉइंट वेंचर के हिसाब से क्लासिफाई करना है। पहले तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जॉइंट ऑपरेशन क्या होता है? इट इज अ जॉइंट अरेंजमेंट whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets and obligations for the liabilities. इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हुआ कि जॉइंट ऑपरेटर कैन इंडिविजुअली क्लेम their share in their assets and liabilities separately. अब ये जो अरेंजमेंट 2 और मोर पार्टीज ने बनाया ना, वो एक सेपरेट व्हीकल के थ्रू नहीं होता है कभी भी। जॉइंट ऑपरेशन में, जॉइंट ऑपरेशन में एक सेपरेट व्हीकल के थ्रू कभी नहीं होता है। जनरली सेपरेट व्हीकल के थ्रू भी हो सकता है, जनरली एक सेपरेट व्हीकल के थ्रू नहीं होता है। तो वो केस में जॉइंट ऑपरेटर कैन इंडिविजुअली क्लेम their share in their assets and liabilities separately. For example, A और B, A लिमिटेड और B लिमिटेड दोनों ने डिसाइड किया कि कोई एक ऑपरेशन करते हैं, साथ में कुछ बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो उस बिजनेस में मैं एक एसेट डालूंगा, मशीनरी, A बोलेगा, B बोलेगा मैं एक प्लांट डालूंगा उसमें। तो बाद में जब वो क्लेम करने जाएगा तो ए बोल सकता है ये मेरा मशीनरी है, मेरा शेयर है ये, और ये बी वाला बोलेगा कि ये प्लांट मेरा है, बी लिमिटेड बोलेगा ये प्लांट मेरा है, ये मेरा शेयर है। तो दे कैन इंडिविजुअली क्लेम देयर शेयर इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेपरेटली जॉइंट ऑपरेशन में। जॉइंट वेंचर में जनरली क्या होता है कि एक सेपरेट व्हीकल होती है, सेपरेट व्हीकल होती है। तो व्हीकल में उसमें इन्वेस्टर्स को राइट्स होता है टू द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि पार्टीज कैन नॉट क्लेम द एसेट्स डायरेक्टली और लायबिलिटीज डायरेक्टली। एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिलोंग टू दी जॉइंट वेंचर। वो सेपरेट एंटिटी है ना, वो उसी की होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दे विल डिस्पोज देम, दे विल रियलाइज मनी, एंड वॉट एवर मनी दे विल रियलाइज दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी वेंचरर्स। ठीक है, सेपरेट व्हीकल होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज वो व्हीकल की होती है, वो जॉइंट वेंचर की होती है। वो सेपरेटली इन्वेस्टर क्लेम नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन करना है। कोई ऑपरेशन, क्या वो जॉइंट ऑपरेशन है, क्या वो जॉइंट वेंचर है, कैसे क्लासिफिकेशन करना है वो पहले देख लेते हैं। पहले तो ये देखना है कि आपका जो अरेंजमेंट है वो एक सेपरेट व्हीकल है क्या। अगर सेपरेट व्हीकल नहीं है तो आप आंख बंद करके बोलिए कि वो जॉइंट ऑपरेशन है। ठीक है, सेपरेट व्हीकल नहीं है तो वो जॉइंट ऑपरेशन ही होगा। अगर सेपरेट व्हीकल है तो देखना पड़ेगा कि वो जॉइंट ऑपरेशन भी हो सकता है और जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। और जॉइंट ऑपरेशन कब होगा?
जब इन्वेस्टर विल हैव राइट्स टू एसेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लायबिलिटीज इंडिविजुअली और सेपरेटली। ठीक है, अगर इन्वेस्टर के पास वो राइट नहीं है, सेपरेट क्लेम करने का राइट नहीं है, या इंडिविजुअली क्लेम करने का नहीं है राइट, तो वो सारी एसेट्स लायबिलिटीज तो फिर वो सेपरेट व्हीकल की होगी। तो अगर वो सेपरेट व्हीकल की है तो वो वही रियलाइज करेगा सेपरेट व्हीकल, और वो डिस्पोज करेगा और वो इन्वेस्टर्स को देगा। ठीक है, तो वो केस में आपके पास राइट है टुवर्ड्स द नेट एसेट्स ऑफ द व्हीकल। आपके पास इंडिविजुअल राइट्स टू द एसेट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास राइट्स है टू द एसेट्स एंड ऑब्लिगेशंस फॉर द लायबिलिटीज इंडिविजुअली और सेपरेटली, तो वो सेपरेट व्हीकल होने के बावजूद भी जॉइंट ऑपरेशन हो जाएगा। जॉइंट वेंचर कब होगा? जब आपके पास राइट्स है टू द नेट एसेट्स ऑफ द व्हीकल। ठीक है, आपको पहला स्टेप ये देखना है कि सेपरेट व्हीकल है क्या। सेपरेट व्हीकल नहीं है तो इट इज अ जॉइंट ऑपरेशन। आंख बंद करके बोलो, इट इज अ जॉइंट ऑपरेशन। सेपरेट व्हीकल है तो वापस आपको देखना है कि वो जॉइंट ऑपरेशन भी हो सकता है, जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। जॉइंट ऑपरेशन कब होगा? व्हेन द इन्वेस्टर हैज राइट्स टू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो आपका जॉइंट ऑपरेशन हो गया। तो इन्वेस्टर्स के पास राइट है टू द नेट एसेट्स ऑफ द व्हीकल, तो आपका जॉइंट वेंचर हो गया। आपको ये देखना है, लीगल फॉर्म ऑफ द सेपरेट व्हीकल देखना पड़ेगा, टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट देखना पड़ेगा, या तो अदर फैक्टर्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखना पड़ेगा, और एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टर के पास क्या राइट्स है, राइट्स टू द नेट एसेट्स है, या इन्वेस्टर के पास राइट्स टू द एसेट्स एंड ऑब्लिगेशंस फॉर द लायबिलिटीज है, सेपरेटली और इंडिविजुअली। तो वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब अकाउंटिंग फॉर जॉइंट अरेंजमेंट्स क्या होता है? अब जॉइंट ऑपरेशंस का पहले देख लेते हैं। ठीक है, कंसोलिडेटेड एफएस में और सेपरेट एफएस में, दोनों में जॉइंट ऑपरेशंस की अकाउंटिंग एग्जैक्टली सेम होगी, एग्जैक्टली सेम रहेगी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ईच ऑपरेटर शेयरिंग कंट्रोल shall records its own share in assets, liabilities, income, expense of joint arrangement. जो जॉइंट ऑपरेटर है ना, ठीक है, जॉइंट ऑपरेटर कैसे रिकॉर्ड करेगा अपनी एसेट्स लायबिलिटीज? वो अपनी एसेट्स लायबिलिटीज जैसे रिकॉर्ड करता है वैसे करेगा, लेकिन जॉइंट अरेंजमेंट की जो एसेट्स लायबिलिटीज है ना, तो उसमें जो उसका शेयर है वो भी वो इसमें ऐड करेगा। ठीक, उसकी एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस प्लस शेयर इन जॉइंट ऑपरेशंस। तो जॉइंट ऑपरेटर अपनी शेयर की भी अकाउंटिंग उसी में करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेम सिमिलर अकाउंटिंग होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट वेंचर्स में क्या होगा? जॉइंट वेंचर्स के सीएफएस में क्या होगा? उसकी अकाउंटिंग होगी इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 28। ठीक है, इक्विटी मेथड से होती है, वो इंड AS 28 में देख लेंगे। और जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है वो कॉस्ट, या तो फिर इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 109 दैट विल बी स्पेसिफाइड इन इंड AS 27। तो इंड AS 27 में डिटेल में देखेंगे कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो कोई ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन ऑपरेटर एंड जॉइंट ऑपरेशन में, अभी जॉइंट वेंचर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी बात कर रहा हूं जॉइंट ऑपरेशन की। ऑपरेटर और जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन मैंने क्या बोला? सेपरेट व्हीकल नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। तो समझो कि जॉइंट ऑपरेशन तो सेपरेट व्हीकल नहीं है, समझो जॉइंट ऑपरेशन सेपरेट व्हीकल नहीं है, तो मेरे को उसमें से जो शेयर है वो मेरे को रिकॉर्ड करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से। और अगर ऑपरेटर ही जॉइंट ऑपरेशन को कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं उन दोनों के बीच में, समझो सेल हो जाता है या परचेस हो जाता है, तो वो केस में ऐसा हो गया ना कि ऑपरेटर जॉइंट ऑपरेशन को ही दे रहा है, मैं अपने आप को ही दे रहा हूं, ए लिमिटेड अपने आप को ही बेच रहे हैं, तो वो केस में मेरा जो शेयर रहेगा ना, उस पर प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करना है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर मी फॉर इंड AS 111। जय हिंद, जय भारत।